The kingdom is rising, the sun is shining, and the kings of Europe are back. So, welcome to the Football Parliament, your one stop destination for all your football discussions, debates, and opinions. Today, I have a very special guest, so he'll introduce himself first. Hi guys, I'm Suryanj. I'm a Real Madrid fan. I started watching football back in 2010 and have been supporting Real Madrid since 2014. So you can say I'm a very old fan. Yeah, exactly. So, let's get started. Uh, let's talk about Real Madrid this season itself, the 21-22, and some of the big changes we have seen so far. So, starting off with you, Suryansh, what is that first big change we have seen in Real Madrid from the 2021 to 21-22? The biggest change, in my opinion, has been Vinicius Jr. That guy Hmm. is class apart. If you ask me at the moment which player I'd pick, Mbappe or Vinicius at that position, there's no Hmm. point. I'll just straightly go to Vinicius because Hmm. that player has improved drastically. We are talking about 3 goals last season and 9 goals, Yeah. and the season is not halfway there. You can Hmm. imagine how much he has improved. And the second thing I'll say that has improved is the shot creation and the Hmm. ability to take shoots, which has increased Hmm. drastically as well from 14.8 to 16.7 something. Hmm. So this is also a very big change, a very good point by Suryansh. Also talking about Vinicius Junior, I'll just give a stat about him. उसका एक ऐसा स्टैट मैंने पढ़ा रिसेंटली दैट ही जस्ट नीड्स वन मोर असिस्ट और फिर उसके गोल और असिस्ट टैली दोनों डबल फिगर्स में आ जाएंगे and he's already got 20 GA this season already. So that's really very good, and I'm very happy about it. Second thing being कि हाँ शॉर्ट क्रिएशन के बारे में 14.7 से 16.7 बढ़ा. बट एक चीज और जो काफी लोगों को वरी कर रही है दैट दिस माइट नॉट बी सस्टेनेबल बिकॉज मैड्रिड का एक्सजी मैड्रिड इज वाइडली ओवर परफॉर्मिंग देयर एक्सजी. तो उसके बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि द थिंग विद मैड्रिड इज कि वो काफी वर्सेटाइल है. आई डोंट थिंक इट्स अ पॉइंट टू बी वरी अबाउट. वी शुडंट बी वरीइंग अबाउट इट इन माय ओपिनियन. मैड्रिड की एक वर्सेटैलिटी है against different teams. They can sit back, they can keep possession in their own half, and they'll be very comfortable. We've got three ball retention midfielders who can keep the ball really well with them, and we've got, of course, Benzema and Vinicius to pull up the pace and score goals. So, plus the one more difference, key difference in this Madrid side is that कि पिछले सीजन हम लोग बहुत चांसेस हक देते थे, ठीक है. और ये सीजन हम लोग प्रिटी डायरेक्ट है. असेंसियो के भी काफी सारे मतलब 5 to 6 goals even he has scored and really good goals. So another plus point. Now moving on again, as we mentioned, the XG part. So Suryansh, what are your thoughts about it? पर्सनली व्हाट आई फील इज कि लोग ना गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं हमारी एक्सजी को, क्योंकि मैड्रिड के अगेंस्ट एवरी टीम सिट्स बैक, दे डोंट प्रेस, क्योंकि वी प्ले दैट काइंड ऑफ फुटबॉल. तो देयर आइडियोलॉजी इज कि हम पीछे रहेंगे एंड दैट वे दे कैन नॉट स्कोर. But what is going against them is that Vinicius and Benzema are too good. They have actually understood what Ancelotti wants to put there. The ideas such as ki we'll go for the opposite corner where the goalkeeper is working. It's 100% working for us, and we are outscoring by plus 9.6. That's even more than the goals Barca has scored this season. This is how good we are. That is Yeah, something we have to get into it. And I guess the changing moment for this team was the game against Mallorca, where Asensio scored that hat trick. Those three yeah. goals, I guess, changed the complete direction. They brought Cruz back in control, Modric becoming the monster he was, and people were thinking that he is not this, that. Casemiro being Casemiro, and we know Benzema and Vinicius being the GOATs. Yeah, I completely agree with you. Benzema and Vinicius being the goats. Although one more player I would like to mention who has been under the spotlight of lately is Ferland Mendy. I think उसके आने से पहले Madrid were conceding a bit. मतलब I won't say a lot of goals, but they were conceding a bit of goals. But जब से वो आया है ना, Alaba has been a bit relieved and so has been Militao क्योंकि वो defensive minded fullback है. So it really works. मतलब कि वो हमेशा पीछे रहता है. He doesn't really go ahead. He's like a pessimistic fullback, should I say, or a pessimistic defender who will first think कि क्या क्या possibilities हैं अगर मैं आगे जाऊंगा. He'll think before doing anything. So that's also a plus point. I also feel that yeah, the game against Inter currently proved that our defense, how strong our defense is. We have Yeah, been solid with the yeah. likes of Eder being that guy who is taking in charge at the moment, and Alaba being there. And I don't understand how Alaba is connecting with us so well.
it's like he knows Real Madrid better than those people who are playing in Real Madrid for the last 10 years. I don't understand Not how 10 he years, has but taken the yeah. charge. He has taken charge from Sergio Ramos. I thought कि हम तो गए भाई, गया Ramos गया, we are like Varane भी गया, अब क्या होगा? But Alaba, Hmm. what is signing he has been? Thank Florentino Yeah. Perez कि free में ले आया उसे. Scoring against हाँ. in the first El Clasico, he scored a banger of a goal, created the whole chance Yeah. himself. So I'd say अपने दिन अच्छे आने वाले हैं. And if this continues, I won't be surprised कि हम 14th UCL भी उठा रहे हो इस season. हो सकता है. प्लस मैड्रिड को आप कभी भी ना ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज there's a reason why we have 13 Champions Leagues and not other clubs like Chelsea or Barcelona. ठीक है. There's a reason for that. आप हमें कैंसिल नहीं कर सकते. This is our favorite competition. And one more thing which I would like to mention is कि David Alaba, yes, काफी लोग कह रहे थे that why are we overpaying him? Bayern were only giving him 150k to 200k per week or per month, something like that. I don't remember his wage ka thingy, but what I do know is कि Madrid are paying him 350k per week or per month, something like that, right? He pretty much deserves that. He scored a free kick also, and YJR Yash, he once said कि अगर Ramos was the father of this team, David Alaba is the perfect stepfather, and I completely agree with him. मतलब वो क्रूज को बता रहा है भाई क्या करना है उसको, वैसा हाँ, प्रॉपर दैट इज लीडर हो समथिंग चुका है जो वो. मेरे को भी नहीं समझ आया. मैंने इनिशियली देखा, मैं बोला हाँ. यार ये क्रूज को क्या बता रहा है. क्रूज पिछले 6 साल से तो हमारे लिए ही हैज बीन दैट स्टोन जो पासेस निकालेगा. बट उसके बाद गेम हाँ. स्विच हो गई. गेम स्विच हो गई एल्बा हाँ. का. आई डोंट नो एल्बा ने कैसे कैलकुलेट किया. उसने रियल मैड्रिड को ही हैज प्लेइंग लाइक कि हाँ आई वाज बोर्न इन मैड्रिड, मैं फैब्रिका से उठाऊं, मैं मैड्रिड के लिए खेल रहा हूँ, बायर्न तो मैं हाँ, कभी मतलब गया ही नहीं. मैड्रिड डीएनए वाला बंदा हो गया है वो एकदम. एग्जैक्ट रैमोस है. मतलब व्हेन मैड्रिड माइट नॉट बी स्कोरिंग, अभी तो बहुत फ्री फ्लोइंग हो रहा है, आराम से भी है स्कोरिंग, नॉट अ प्रॉब्लम. बट फॉर एग्जांपल इफ अलाबा वाज इन दिस साइड लास्ट ईयर, आई एम प्रीटी श्योर वो रैमोस वाली हरकतें करता, पूरी पूरी रैमोस वाली हरकतें करता. आई थिंक हम अगर मैड्रिड चेल्सी के को पास हरा गोल देते नहीं हैं. है, स्कोर ड्रॉ है. चेल्सी को हरा देते वो हाँ, मैच, वो जीत जाते हैं हम. शायद से स्कोर ड्रॉ चल रहा है एक मैड्रिड गेम का. ये बंदा सबको बोलता था शांति रखो, मैं आगे जा रहा हूँ, एंड देन ही वुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू अ गोल जस्ट लाइक हाउ रामोस डिड फॉर अस. चेल्सी वाले गेम के बारे में मैं तो नहीं जानता, बिकॉज क्रूज मॉडरिच वर प्रीटी टायर्ड, एंड व्हेन दे आर टायर्ड ना, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, बिकॉज वी डोंट हैव those gems in our bench who can. Federico Valverde and Camavinga are great players, but they're nowhere near Cruz नहीं, Modric. that is We know one that. fact. I rate Valverde, but I don't see कि अगर we don't have Cruz तो we lack creativity. Valverde can be a Yeah. very good midfielder, but he cannot give that long balls जैसे Cruz वगैरह डालते हैं. He doesn't have that kind of vision. But I see Camavinga becoming one of those players क्योंकि Camavinga was good at defensive mid as well, और उसने creative जैसा वो इंटर के अगेंस्ट फर्स्ट गोल बना था रॉड्रिगो का, क्लास गोल था यार, क्लास गोल. वो It's been years. प्रोग्रेसिव कैरियर भी हम एक तरीके का, बिकॉज आई सीन हिम ड्रिबल अ लॉट, और बहुत फ्रीली खेलता है वो, उसको कुछ प्रेशर फील ही नहीं होता है. जैसे कि इतने बड़े क्लब में खेल रहा है, इतने बड़े स्टेडियम में 50,000 people are cheering for him, although cheering, but still the 50,000 people are looking at you, you're my age, our age, 18 years old, and you're performing like कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. वो फ्री फ्लोइंग खेल रहा है बंदा अपना मस्त. वही ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहां से ऐसा टैलेंट आ रहा है. एंड हाँ. फ्रांस इज द मेन हब, विच इज मोर हाँ, फ्रांस इज द सरप्राइजिंग. मेन हब. या. जिडान के बाद आई रिमेम्बर पॉग्बा का था कि हाँ यार मैन यूनाइटेड में एक बंदा है, ही विल रूल द वर्ल्ड. वो यूवेंटस गया, जब से मैन यूनाइटेड आया ही हैज बीन गया, ही हैजंट बीन द सेम. बट कामाविंगा में ना आई हैव सीन वन थिंग कि ही इज लाइक जमाल मूसेआला है ना, उसका जैसा बॉल कंट्रोल है ना, कामाविंगा का सेंस ऑफ एसेंस वैसा है. एंड जो वो पासेस हाँ. निकालता है काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ वन प्लेयर जिसको हिस्ट्री भूल गई है, बर्नार्डो सॉरी बर्नार्डो नहीं, डेविड सिल्वा. डेविड सिल्वा. या. एवरीवन डोंट रेट हिम, बट वो वन ऑफ दोस प्लेयर्स था जिसके प्रोग्रेसिव पासेस वगैरह बहुत ज्यादा थे. एंड आई थिंक कामाविंगा अगर ऐसे ही करता रहा, ही विल बी द एग्जैक्ट प्लेयर वी वांट. बहुत साल गुटी, यू रिमेम्बर राइट? या. गुटी वाज वन प्लेयर जो हमें वैसा चाहिए था, एंड आई थिंक कामाविंगा इज दैट रीजन वी वांटेड. I completely agree with you. Also, going about Guti's position, there is one more player who's not exactly Guti, but Antoine Blanco. What do you think about him? कि उसका अब क्या होने वाला है? Because we are seeing कि उसको barely कुछ game time मिल रहा है. Zidane के under he had like 4 to 5 games last में उसने खेले थे. If I am being honest with you,
जैसा हमारा ट्रांसफर अभी करिकुलम चलना चाहिए 22 में, विच इज वी आर प्लानिंग कि हम वी आर गोइंग गैलेक्टिकोस नेक्स्ट समर, जो आई Yeah. थिंक विल हैपन। तो आई सी पापा पेरेस ब्रिंगिंग वन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, जैसा फिल फोर्डन है, जिनका विजन है, बहुत तगड़ा विजन वाले प्लेयर्स होंगे, Hmm. यंगस्टर जिसका विजन है। ब्लैंको वुड हैव सर्वाइव्ड, अगर ब्लैंको को अभी टाइम नहीं मिला तो इट विल बी इवन मोर टफर टू गेट टाइम्स इन द नेक्स्ट वो। या तो फिर वही है ना, मड्रिड वे में होएगा पूरा, लोन डील दे देंगे उसको कोई दूसरे ला हाँ हाँ लीगा हाँ। क्लब में भेज के, उसको वहां पे गेम टाइम मिल जाएगा, एंड इफ ही improves he'll come back and then he'll get that CDM spot बट from आई Casemiro in अगर 3 वी years time. साइन समवन जो क्रिएटिव है ना ज्यादा, आई हाँ एम अफ्रेड ब्लैंको को चांस नहीं मिलेगा। टफ है, बहुत टफ होगा। क्योंकि हाँ, अगर टफ काम, तो है, टफ तो है। देख, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, चलो मॉडरिच वी कैन लीव असाइड, ही इज 37, उसको छोड़ देते हैं। हम्म, वी हैव क्रूज हु हम्म, इज 30, कैसेमीरो हु इज 28, वैल्वर्डे हु इज हम्म, 23 एंड कामाविंगा इज 18। चार बंदे तो हाँ 5 साल कम से कम खेलेंगे, 5 इयर्स ये हो गए। खेलेंगे। क्रू बाय द वे, अब ब्लैंको, क्रूस इज 32 एंड कैसेमीरो इज 29। हाँ तो इतने मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन ना, 5 इयर्स तो ये लोग या खेल आई लिए, एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, या अग्री। 5 इयर्स ये खेल लिए। देन व्हाट, ब्लैंको का तब तक तो वो हम्म, निकल जाएगा कि हाँ डेब्यूटेंट वाला पार्ट निकल जाएगा। बट आई, इफ आई हाँ एम बीइंग ऑनेस्ट, आई वांट दैट गाय टू प्ले इन रियल मैड्रिड। वो, सेम सेम। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो की टू वॉच होगा, जैसे हकीमी निकला है ना, हाँ ब्लैंको इज दैट ग्रेट प्लेयर, मतलब ही इज नॉट। मड्रिड इसको आई डोंट थिंक जाने दे सकती है, बिकॉज वो ना एक डीप लाइन प्लेमेकर है पहली बात। वो पासिंग पे आई थिंक टोनी क्रूज का एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स नो वन कैन रिप्लेस दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, बट he's like 10% close to Tony Cruz, because same, almost same positions, a deep line playmaker hai. He'll give you long passes, then he can try to slow down the game, जो कि Cruz भी कर सकता है by the way। तो कह सकता है कि ये लोग रख भी दें उसे, और कैमाविंगा को CDM पे रख देंगे एंड इसको शिफ्ट करके क्रूज की जगह पे। इट्स अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना हैपन गाइस। नहीं, यू आर करेक्ट, हो सकता है, हो सकता है। इफ एंचेलोटी ट्राइज की, जैसा उसने एवर्टन में एक टाइम ट्राई किया था कि रिचार्लसन को उन्होंने सेपरेट ही कर दिया था सिस्टम से, सेपरेट कर जो दिया थ्री था, थ्री थ्री हाँ। हाँ 3-3-3 खेल रहे थे ना, 9 प्लेयर्स पीछे और एक आगे ही खेलेगा बस। तो इट कैन हाँ हैपन कि बेंजेमा को वो प्लेयर बना दिया जाए, बट फिर ये होगा कि बेंजेमा इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्राइकर, वो ले बैक वही, करेगा, अगर वो ले हुआ तो ये लिंक पूरा अप प्ले सिस्टम करना गया। है उसे तो। हाँ, बट नहीं, आई सी दिस हैपनिंग, आई सी दिस हैपनिंग, क्योंकि इफ एंचेलोटी इज गिविंग टाइम टू विनीशियस, ही माइट गिव चांस टू अदर यंगस्टर्स एज वेल। और जिस हिसाब से वी आर हम्म, गोइंग इन द टेबल ना, हम्म, जिस हिसाब से वी आर गोइंग इन द टेबल, आई थिंक कि जैसे हमारी विनिंग स्ट्रीक चल रही है, यू नो ना, 11 मैचेस हाँ भाई, 11। हाँ माय 11 गॉड, इतने तो मैचेस। भाई मैंने, इतने और साल हो वो गए भी मैं ऐसे मुझे। नहीं कि कोई लल्लू पल्लू टीम के अगेंस्ट खेले हम। लालिगा की टॉप साइड जो है ना, उनके सामने हम लोग खेले हैं और जीते हैं। इंटर मिलान के सामने भी खेले हैं और जीते हैं। We've beaten Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Real Betis, Inter Milan, वो 11 गेम स्ट्रीक स्पैन पे। तो इट्स एंड सेविया टू, राइट? सिवियर टू, या सेवी यस। वाज देयर, हाँ। तो छह इतनी तगड़ी टीम, लालिगा के हिसाब से तो तगड़ी है ही, नॉट यूरोप स्पीकिंग। इंटर मिलान भी अच्छी टीम है, इन सबको हमने हराया। तो कुछ तो बात है ना मैड्रिड में, ऐसा तो नहीं है कि इजीली ऐसा हो रहा है। बट व्हाट आई थिंक कि एंचेलोटी का गेम प्लान यही रहेगा। उसने 14-15 सीजन में, जब हम लोग बहुत आगे चले गए थे टेबल में, बट फिर जनवरी फरवरी में हगना थोड़ा चालू कर दिया था हम लोगों ने, वो वैसा ही कुछ करने वाला है। कमिंग फरवरी जब चैंपियंस लीग आएगा, he'll rest Cruz, Modric, Benzema वगैरह, he'll give time to Jovic, Valverde, Camavinga, etc. and La Liga, and he'll keep them fresh for the Champions League game, so that for PSG, our gems or our main players who can win that game, they'll be fresh. आई टोटली एग्री विद यू, ये होना चाहिए, बिकॉज in February we are facing PSG, if I'm being correct, so we are Hmm. facing PSG as of now, and हाँ, I personally feel कि if Cruz and Modric play that game, PSG खत्म हो yeah. जाएगी, PSG खत्म हो जाएगी। Hmm. if Marco Verratti doesn't play that game और M&M ब्रांडिंग चांस खेल रही नहीं है, है। तो we have a greater chance of winning that match। but Hmm. I feel अगर यार Jovic starts shooting, who knows, हाँ विनीशियस का तो नो वन थॉट कि विनीशियस ऐसा जाएगा कि विनीशियस इज एट द मोमेंट टॉप 5 प्लेयर्स, अगर कोई मान नहीं रहा तो ही इज नॉट वाचिंग फुटबॉल, आई एम बीइंग हाँ, ऑनेस्ट। विनीशियस और अगर जोविच रीसेंट परफॉर्मेंस खेल की गए, बेसिस पे, यस। हाँ इनका वर्क एथिक भी आई गेस हैज इम्प्रूव्ड। विनीशियस को यू सी हाँ भागता रहेगा पूरे मैच में, एंड आई गेस जो हाँ 11 रनिंग हमारी स्ट्रीक है ना, उसका इफ आई वो टू गिव परसेंटेज वाइज डिफरेंट करना पड़ेगा ना,
तो I'll go with a 30% विनीशियस का कंट्रीब्यूशन है उसमें. He has been नहीं, आई थिंक और भी ज्यादा रहा है भाई, उसने गोल्स बहुत मारे हैं. आई थिंक वील गिव अराउंड 40% क्रेडिट्स टू विनीसियस, क्योंकि बेंजेमा भी 2-3 गेम एब्सेंट था और 1-2 गेम में उसको सब ऑफ किया था क्योंकि इंजरी के डर के चक्कर में. तो विनीसियस डेफिनेटली डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. मेरे को तो लग रहा था व्हेन द सीजन स्टार्टेड कि ये बस ऐसे ही इसने 2-3 गोल मार दिए, इतना ही रहेगा इसका और फिर ये फिर से इसका चालू हो जाएगा. बट ही इज प्रूविंग मी रॉन्ग एंड आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज प्रूविंग मी रॉन्ग. एंड एनीवेज, सरप्राइजिंगली जैसे वी कि थॉट कि बस रियल मैड्रिड के लिए वैसा है, ब्राजील के लिए भी ही इज बीइंग सो गुड यार, सो गुड. आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा मतलब इट कैन हैपन कि ठीक है तू नवंबर मतलब आई टॉक अबाउट चेल्सी का गेम. चेल्सी का फर्स्ट गेम ही वाज शिट, एकदम बेकार, बट तब से ही हैज इंप्रूव्ड भाई. बट आई एम गोइंग असाइड फ्रॉम द टॉपिक, व्हिच इज द ट्रांसफर यू वांट इन जनवरी, मतलब कोई प्लेयर्स यू वांट इन जनवरी एंड ऑल. The players which I'll be wanting is first of all a right back, second choice right back, and second choice right back being Pedro Porro, who is linked with Real Madrid. उसको probably कह रहे हैं कि समर में आएगा, but डैनी कार्वाहल के बाद लूकस वास्केज आता है, और अगर मैड्रिड हाईलाइन खेली ना तो लूकस वास्केज एक्सपोज हो जाएगा. तो इसलिए हमें एक नेचुरल राइट बैक चाहिए उस रोल में. पहली बात तो वो पोजीशन है. दूसरी पोजीशन एक सीडीएम जो कि एग्जैक्टली कैसेमीरो हो, मतलब कैसेमीरो जैसा ही हो. आई एम नॉट सेइंग कि ब्लैंको को मूवमेंट्स नहीं देंगे उसके. ब्लैंको कैन शिफ्ट टू अ डिफरेंट रोल और समथिंग लाइक दैट, बट हमें एक सीडीएम का मतलब कैसेमीरो का एक बैकअप भी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे हिसाब से तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीडीएम, द फर्स्ट प्लेयर हु कम्स टू माय माइंड अभी ना इज कैसी, एसी मिलान का कैसी कैसी चूलेमानी. हाँ, वो दोनों आ रहे हैं. वो दोनों हैं, मतलब आई दोनों में से पर्सनली कोई फील एक आना कि चाहिए. हाँ, बट एक प्लेयर जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, ये बहुत आउटसाइड द बॉक्स है, बट आई फील कि डॉटमैन आर आउट ऑफ यूसीएन. मीनू एसी मिलान रायोला इज आल्सो. ओपन. Mino Raiola is open. Erling Braut Haaland is one player who is planning a move in winter transfer window. And if we sign Haaland, don't be surprised PSG को we thrash. मतलब I'm not be surprised. ये बहुत ज्यादा ही बड़ा एक हो गया है. लाइक एक थॉट है, एक इमेजिनेशन है ये. मतलब हालैंड अगर मैड्रिड में आ गया तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एम्बापे तो ऐसे भी आ ही रहा है समर में. लाइक इट्स प्रीटी मच नोन कि आएगा वो. वेदांत, जस्ट इमेजिन अगर एम्बापे प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जनवरी में एंड फरवरी में ही प्लेज रियल मैड्रिड. ही इज प्लेइंग रियल मैड्रिड. ओ भाई. और हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि वी आर गोइंग टू साइन हिम फॉर अ फ्री. आई डोंट थिंक कि पापा इज इन मूड कि हाँ भैया अब तो पैसे देंगे. मनी विल बी सेव्ड. बट और आई वो भी है गेस कि हाँ, वो एम्बापे, हाई पॉसिबिलिटी है. हाँ वो भी है कि अभी एम्बापे को या तो राइट फ्लैंक पे खिलाना पड़ेगा, या बेंजेमा के 1-2 साल के बाद ही स्विच टू स्ट्राइकर, बिकॉज़ लेफ्ट विंग तो विनीसियस है ही है. नहीं आई एम यार, प्रीटी श्योर कार्लो मैं वोंट तो चेंज रिस्क भी दैट. ना लूं. if I am being bluntly honest with you, अगर एम्बापे आता है he'll play right wing for me, he'll not play left wing. कोई चांस ही नहीं है. हाँ, प्लस वो उस पोजीशन पे खेल भी चुका है. प्लस हाँ, वो उस पोजीशन पे खेल भी चुका है मोनाको के लिए भी, एंड आई थिंक इन हिज फर्स्ट सीजन आल्सो और सेकंड सीजन एज वेल इन पीएसजी वो खेल चुका है राइट विंग. तो आई डोंट थिंक उसके लिए इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए. And I guess, guys, that is the video for today. We were discussing Real Madrid. If you all have any thoughts about the club, do let us know in the comment section. Make sure to like this video. If you're watching till the end, subscribe to our channel once again, and stay tuned for more.